Good morning, students. How are you? Let us start. Your history textbook, chapter first, pages 4, 5, 6, 4, 5, 7, 8. So, let us start. The struggles of survive. जीने के लिए सर्वाइव करना. The population of the France rose from the about 23 million in 1715 to 28 million in 1779. The led of the period a repeat increase in the demand for the food grain productions of the grains could not keep pace with the demand, so the price of the bread, which was the step die of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as labor in workshop whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise at price, so the gap between the poor and rich widened. Things become worse whenever through are held products to harvest. This led is a substance cries, something the overhead frequency in France during an old regime. तो स्ट्रगल्स ऑफ द सर्वाइव में क्या है कि फ्रांस का जो टोटल पॉपुलेशन था 23 मिलियंस 1715 में, जो 28 मिलियन हो गया 1779 में. अब यहाँ पर क्या है कि जो रेपिड इंक्रीज़ हो रहा था डिमांड कारकस के फूड ग्रेन्स को लेकर, प्रोडक्शन अनाज को लेकर, वो पूरी तरह से जो डिमांड था उस पे बेस पर नहीं मिल रहा था. एक मेजॉरिटी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, खास करके जो वर्कर्स और जो एम्प्लॉयड है, लेबर है, जो अपने वर्कशॉप और फिक्स्ड मजदूरी पे जो काम करते थे, ना उन्हें ठीक से मजदूरी मिल पा रही थी और ना ही उन्हें जीने के लिए अनाज की ज़रूरत होती. तो इस प्रकार से हार्वेस्ट जो फसल के ऊपर जो उन्हें क्राइसिस आ रहे थे, वो एक फ्रांस में ओल्ड रेजिमेंट्स के रूप में एक विद्रोह के रूप में काम किया. ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर. ए ग्रोविंग मिडिल क्लास इविगेंस एंड इज़ अ प्रिविलेज. जो मध्यम वर्गीय परिवार लोग हैं, उनका ज़्यादा प्रॉब्लम था प्रिविलेजेस के समय में. इन द पास्ट पीसेंट्स द वर्कर हैड द participate in the revolts against the increasing tax and food security, but they lacked the means and the programs to carry out full scale measures that would bring about the change in the social and economic order. This was left to those groups within the third Christ who had become prosperous and had across the education and new idea. तो जिस प्रकार से 1715 से 1779 के बीच में जो फूड ग्रेन्स वाली प्रॉब्लम थी, वो पास्ट की बातें अब यहाँ पर भी आ रही थी. यहाँ पर जो वर्कर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे सरकार के रिवोल्ट विद्रोह, सरकार के विरुद्ध जो रिवोल्ट चल रहा था, खास करके टैक्सेस में इंक्रीज़ और फूड सिक्योरिटी को लेकर. अब यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों का भी नुकसान हो रहा था. जो प्रोग्राम्स अभी तक लोगों के लिए चल रहे थे, फुल स्केल्स और सामाजिक और आर्थिक जो ऑर्डर मिल जा रहे थे, उसके अगेंस्ट लोग आ रहे थे, और थर्ड कैटेगरी के लोग भी उसके सामने आ रहे थे, खास करके नया एजुकेशन और न्यू आइडिया को लेकर भी. The 18th century witnessed the emerge the social group termed the middle class, who earned their wealth through in the expenditure over trade and from the manufacture of the goods such as the woolen and silk textile that were created, export and borrowed by the richer member of society, and the additions of the merchants and manufacturing. The third grades include the professions such as a lawyer and administrative official. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, is a person a social positions must depend on his merit. This idea increasing the society based the freedom and equal law and opportunity for all
put forward by the philosophers such as John Locke and John Requires the resource. In this, the two territories of the government lacked the throughout the refer to doctrines and the divine the absolute right. तो जो अब यहाँ पर मिडिल क्लास और जो प्रीविलेज लोग था उसका भी बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि पास्ट में जो वर्कर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवोल्ट से अगेन जो टैक्सेस को लेकर, तो 19वीं शताब्दी में ये और एक सामाजिक ग्रुप के रूप में तैयार हुआ, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो अर्न कर रहे थे वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, खासकर व्यापार व्यवसाय और मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर वस्तुओं में खास करके वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को लेकर जो काम करते थे, जो ख़रीदार थे, खासकर जो अमीर लोग थे समाज में वही खरीद लेते, और एक्स्ट्रा एडिशनल मर्चेंट्स उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। प्रशासनिक तंत्र जो ऑफिशियल वर्क था वो भी इस तरह बढ़ रहा था, खास करके एजुकेशन में जो बिलीव करते थे उसमें कोई सामाजिक समूह नहीं था, और यहाँ पर प्रीविलेज भी बर्थ रेट्स नहीं था, खास करके सामाजिक पोजीशन जो था वो काफ़ी मेरिट लिस्ट पे जा रहा था। और दूसरा है कि जो आइडियाज़ है सोसाइटी में स्वतंत्रता और समानता का जो अवसर है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। इस प्रकार फिलोसफर जॉन लॉक और जॉन्स जोक्रोस ने भी वहाँ पर द टेरिटरीज ऑफ द गवर्नमेंट संघीय शासन के रूप में बारे में जो खामियां हैं उसे लिखी, और लोगों को जो एब्सोल्यूट राइट्स है वो देने का वकालत किया। फिर आता है द मोनार्च रिव्यूज कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड द प्रोस्पेक्टिंग एज गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। Monasteries support the divisions of the power within the government, between the legislature and executives and the judiciary. The model of the government was put into force of the USA after the 13th century's election there the independence from the Britain. The America situation and governance of the individual rights was important people for political thinker in France. तो इस प्रकार की गतिविधियों के बावजूद भी जो संसाधन जो राजा मोनार्च सिस्टम था उसके अगेंस्ट लोग उठ खड़े हुए थे। अब यहाँ पर स्पिरिट ऑफ द लॉ, न्याय की आत्मा के रूप में ये लोग सरकार के बीच में संघीय और वित्तीय और विधायिका और न्यायपालिका एक मॉडल तैयार कर रहे थे गवर्नमेंट में, खास करके जो अमेरिका में 13वीं सेंचुरी में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, वहाँ पर एक स्वतंत्र इलेक्शंस हुए हैं, इंडिविजुअल लोगों को राइट मिले हैं। तो वही थिंकर, वही पॉलिटिकल थिंकर फ्रांस में भी चाहते थे। इंक्लूड दिस द फिलोसफियर वेयर द डिस्क्राइब द इंडिविजुअल सॉल्यूशंस, कॉफ़ी हाउस separate among people throughout the books and supplies this where frequency read about the group for the sufficient there could not read right. The news of the 16 planets impose the further taxes be able to meet the state government anger to protest against the system privilege. तो इस प्रकार से जो फिलोसफियर जो बोल रहे थे, खास करके कॉफ़ी हाउस और अन्य चीज़ों में या किताबों में जो लिखा जा रहा था, जो ग्रुप बन रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्प्यूट्स तैयार हो रहे थे। लोग एक दूसरे से टैक्सेस को लेकर चर्चाएं करना, और इस प्रकार से जो वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो काफ़ी गुस्से में और जो प्रोटेस्ट कर उसके अगेंस्ट भी, प्रीविलेज सिस्टम के अगेंस्ट भी सरकार काफ़ी एंग्री थी। फिर आ जाता है आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशंस के बाहर से। लुइस 16 हैड द नो इंक्रीज टैक्सेस प्रोविजन यू हैव limit in the previous sections. How do you think they could have gone about doing this? In the France of the old
remains the monarch did not have power to improve taxes according to his will alone. Rather, he had to call up the meetings of the Eastern Council, which would have pages and prosperity of new taxes. The Exchange General was a political body to which three stands as the representative how the monarch along the decide when the call meeting of his body the last time was done is 1614. तो लुइस 16 ने जब ये आंदोलन हुआ तो कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए। उसका रीज़न ये था कि जो प्रीविलेज सेक्शन था किस प्रकार से उसको ख़त्म किया जाए, किस प्रकार लोगों को लाया जाए। फ्रांस का एक जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था उसी को पावर इम्प्रूव करना चाहते थे और टैक्सेस के हिसाब से वो लोग का मीटिंग चाहते थे और इस प्रकार से जनरल जो सामाजिक पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट जो लोग जा रहे थे उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। और लास्ट टाइम 1614 में इस प्रकार की एक्टिविटी हुई है। ऑन 5 May 5, 1769, Louis XVI called together the assembly of the Eastern General and passed Percival's new taxes. The response for the vessels was prepared to lost their decades. The first and second extant 300 representatives each who were secreted in the row facing each other on two sides will to 600 members of the third stage and stand at the back. The third stage was represented by more prosperities and educated member, peasants, artists and women. तो 5 मई 1789 को लुइस सेकंड ने एक असेंबली बुलाया जिसमें उन्होंने जनरल स्टेंस न्यू टैक्सेस पास किया जिसमें रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रिविलेजेस और डिसाइड किया गया है। फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए और उसके बाद रो फेसिंग्स के साथ साथ 600 मेंबर थे और इस प्रकार से न्यू टैक्सेस लागू किया, खास करके एजुकेट और अन्य चीज़ों को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। Made where the enlisted the sum 4,000 letter which is the representative and brought them out is the price general is a first been considered according the principle is create one vote. The time Louis XVI determined the continue the same practice but member of the third creator demanded the voting law be contact and the member of the wall there is a member would have one vote. This one of the democratic principle but provided by Polespierre reviews is the book of social contact with the king of the reject a prosperous proposal member of the third state voted and the assembly protect। उसके बाद क्या हुआ कि करीब 4000 लेटर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं जिसमें फ्रांस में जो शासन व्यवस्था था उसको चेंजेस करने के लिए यहाँ पर वन वोट वन पार्टिसिपेट का सिद्धांत को अपनाया गया बाद में, लेकिन उन्होंने मोनार्ची सिस्टम को रखा। बाद में डिमांड आया और इस प्रकार से वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और फिलोसफियर्स का जो बातों को ध्यान दिया गया, खास करके सोशल कॉन्टेक्ट को लेकर, और उसने मोनार्ची सिस्टम राज्य की व्यवस्था को रिजेक्ट किया है अलग अलग उन लेटर्स में। The representative third cross that views the himself spokesman the whole France of nation on June 29 the assemblies the hall of the indoor tenues the court in the ground of the Versailles. The declared assemblies the National Assembly and wrong not be disputed. The defaulted constitution in France would limit the power of the monarch. They were leaders the मिराबेस एंड एब्रोस सिस्टम मिराबेस। तो इस प्रकार जून 20 जून को वहाँ पर इस सिस्टम को लागू किया गया और वहाँ के स्पोक पर्सन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस और फ्रेंच नेशन के लिए मोनार्ची
सिस्टम को लगभग ख़त्म कर दिया, उसकी सारी शक्तियों को ख़त्म कर दिया, नाम मात्र की शक्तियाँ वहाँ पर रह गई। और इस प्रकार से यहाँ पर नए परिवार के रूप में कोई भी सिस्टम्स लागू नहीं होगा। प्रिविलेज जो सोसाइटी में है उसको बना रहेगा और पावरफुल स्ट्रोक के साथ यहाँ पर मोनार्ची सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म किया गया। Abolish the statistics original the priest were the impulations Pramlet called the what is the third stance. While the National Assembly is busy while is departing and France seduces the Traumas and winter mandate is theirs. After the spending board the long breakings to word among strong in the air the same time King ordered top the Paris and 14 July against the crowd स्ट्रॉम एंड डिस्ट्रॉयड बेसिल। इस प्रकार 14 जुलाई को महिला शक्तिकरण के लिए और मोनार्च सिस्टम को कम करने की शक्तियों को कम करने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए। इस प्रकार आउटकैरी और द विलेज और क्रॉप्स को लेकर अन्य बहुत सारी बातों को लेकर संसाधनों को लेकर भी बहुत सारे कानून बनाए गए। आखिर में आ जाता फ्रांस विद द पावर ऑफ द revolting subject Louis XVI finally awarded recognized the National Assembly accepted and the power would be the criticized by on the right for August 1769 Assembly passed the proposed the absolute feudal system और ब्लेस। तो इस प्रकार से फ्रांस में अंत तक 4 अगस्त 1789 को लुइस सेकेंड ने फाइनली लोगों का जो असेंबली नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया गया और इस प्रकार से फ्रांस में जो खासकर की जो टैक्सेस वगैरह को लेकर सारे सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। मेंबर ऑफ द क्रिटिसिज्म रूल्स वे फॉल द गिव ऑफ द प्रिविलेज देयर एब्लाइजेंस ऑर्डर्ड बाय चर्च वे आर कॉन्सेक्रेट एज द। और उस समय जो चर्चेस को भी शक्तियाँ दे रखी थी उनको भी कम किया गया या ख़त्म कर दिया गया। इस प्रकार से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर्स है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और टुमारो आई सेंड योर क्वेश्चंस सो यू आर नोटेड दिस चैप्टर नोट क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।